वेलकम टू ज़ेन कोचिंग क्लास। ज़ेन कोचिंग क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं चिल्ड्रन? आप लोग अच्छे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। टुडे इज अ क्लास ऑफ फैक्टराइजेशन बाय श्रीधर आचार्य's rule. Okay. So in the previous class I taught you the rules of discriminant. Discriminant is the important part of Sridhar Acharya's rule. Okay. So first one, discrimination is D. D equals to b square minus 4ac. I taught you in the previous class. So b square, there are three principles of this discrimination. That is, if b square minus, this is a recap for previous chapter, previous classes. So b square minus 4ac is greater than 0, then two distinct equal roots and real roots. Not equal, two distinct real roots. Two distinct real roots. Okay. Now b square minus 4ac equals to 0. Then two distinct equal roots. Equal and real roots. Okay. Equal roots. Here not equal roots. Supposing say x equals to 3 and x equals to 2 here. And here is x equals to 3. So another is also x equals to 3. Okay. So equal roots. And now last one is b square minus 4ac is lesser than 0. Then no real roots. Okay. No real roots. So this is the formula discrimination. Two distinct real roots, that is b square minus 4ac is greater than 0. Two equal roots, b square minus 4ac equals to 0. And no real roots, b square minus 4ac is lesser than 0. Okay. So these are the rules. Now we'll factorize the equations by Sridhar Acharya's rule. Okay. And we have to factorize the rules by splitting the midterm, that is middle term factor. Okay. First one I will teach that factorization by middle term factor. Then I will teach how to solve the equation by Sridhar Acharya's rule. So what do I say first? That is, please like my video, share to your friends, subscribe my channel, and please comment me through your comment box. मैं मुझे पता तो चले आप लोगों को क्या प्रॉब्लम, तो मैं वो नेक्स्ट क्लास में जरूर सिखा दूंगी. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. Today is Basant Panchami. You know Basant Panchami? That is, in Bengal, it's called Saraswati Puja. Saraswati Puja. That is goddess of education. Okay. So, that day we wear yellow sarees, yellow dresses. So, I am also celebrating the day by wearing yellow saree. Okay, let's start the class. So, now first one is number 1. 21x square minus 8x minus 4 equals to 0. You can solve it by middle term factorization. So you take 21 multiplied by 4. So 21 multiplied by 4, that is, factorize it 2. So 21 multiplied by 2, then 2, so 21, then 3, 7. Okay. So you have to take out 8. So 2 3s are 6 and 7 2s are 14. 14 minus 6 is 8. So we can write 21x square minus 14x plus 6x minus 4 equals to 0. Okay. Now we will take 7x. So 3x minus 2 plus, we can take 2 here. So 3x minus 2 equals to 0. Then here 3x minus 2 and here is also 3x minus 2. We take common 3x minus 2
Midterm factorization I taught you in the previous classes. 7x plus 2 equals to 0. Therefore, 3x minus 2 equals to 0 implies that 3x equals to 2 implies that x equals to 2 by 3. Okay. Now, 7x plus 2 equals to 0 implies that 7x equals to minus 2 implies that x equals to minus 2 divided by 7. So there are two distinct real roots. Okay. So by the formula of Milton factorization, we can solve two roots. Now we will solve this problem with the help of Sridhar Acharya's rule. Okay. So let's start. That is, we will take the formula ax squared plus bx plus c equals to 0. Okay. That is the formula to solve the Sridhar Acharya's rule. Here is ax squared, that is a equals to 21. Bx, in case of minus, take b minus 8. Okay, so b equals to minus 8 and c equals to minus 4. Okay, so ax squared plus bx plus c. Formula is here ax squared plus bx plus c equals to 0. Okay, now at first we will find the discriminant. Discriminant d equals to b square minus 4ac. I will not take this pen. Okay. So, equals to b is here minus 8. So, minus 8 square minus 4 multiplied by 21. 21 multiplied by minus 4. Okay. So, minus 8 square, 8 square or minus 8 square. Answer is the same, that is 64 here. Minus minus, that is plus. 4 multiplied by 4, 16. 16 multiplied by 21. 16 minus 16, 1 carry. 16 to the 32, 33. You know. Yes. So, that is 4, 6, 0, 3, 1 in hand. So 6, 3, 9, 0, 1 in hand. So 4. That is d discriminant equals to b square minus 4ac equals to 400. So now there are two roots. That is, what's the formula? Sridhar Acharya formula, that is minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a. Okay, the value of x. Now one time is plus and then another time is minus. And b square minus 4ac equals to d. So you can write here root over d also. Okay. So first x1 I'll take, that is x1 equals to minus b plus root over d by 2a, and another one is x2 equals to minus b minus root over d by 2a. Understood? So here is minus b. B is minus 8. So minus minus 8. Here is minus, then minus 8. So you will take here 8. Okay. So 8 plus root over 400. Root over 400 by 2a. 2 multiplied by 21 here. Okay. Here is also, so 8 minus 400 root over by 2 multiplied by 21 here. So 8 plus root over 400 means 20. Okay, 20 multiplied by 20, that is 400. So you will take here 20. So 20 by 2 multiplied by 21. So 8 plus 20, that is 28. 28 divided by 42. Okay. So 14 2s are 28. 14 3s are 42. Here is 2 by 3. That is one root. Okay. 2 by 3. And next, that is
8 minus. So 8 minus 20, that is 42. So 8 minus 20 is minus 12. Minus 12 by 42. 6. 6, 2, 6, 7 equals to minus 2 by 7. Okay, so there are two distinct roots, real roots, that is 2 by 3 and minus 2 by 7. Okay, in the previous time when I solved this problem by factorization middle term factors, so that was x equals to 2 by 3 and x equals to minus 2 by 7. Same answer is the same. So we are using here a middle term factorization and we are using here factorization by Sridhar-Acharya's rule. Okay. Sometimes we cannot factorize some ax square plus bx plus c equals to 0 by not by middle term factor. Then we will take, obviously we will take the help of Sridhar-Acharya's rule. Okay. Then next sum, number 2. Understood the sum? A little bit of. Okay. I'll teach you in the next sum. This is a very important chapter for CBSE, ICSE and other boards to factorize the quadratic equation. Now we will go to the next sum. Please cooperate me. मैं आप लोगों को अच्छी तरह से टीच कर सकती हूँ. Okay. Now next sum is, that is root over, okay, no, next sum is x, 2x plus 1 equals to 6. Okay, so next first you multiply this, 2x square plus x multiplied by 1 is x, take 6 here, minus 6 equals to 0, here it was plus, so take this here, that is minus 6. Okay, so 2x square plus x minus 6 equals to 0. So we have to find out x, that is 1x. We don't write 1 here. So 6 2s are 12. 6 2s are 12. 4. So 6 2s are 12. 12. And 3 4s are also 12. And 4 minus 3 is 1 here. Okay. So 2x square plus 4x minus 3x minus 6 equals to 0. We are taking the help of middle term factor. Okay. So 2x here. So x plus 2 here minus 3. So minus 3 is here x minus, that is we have to take here plus. 5 plus, here is minus. So why I am taking plus? Plus minus minus. Always think about the sign here. So x plus 2 equals to 0. Then in both of these you take x plus 2 is common. So please take x plus 2 here. Then 2x is here and minus 3 you write here. So 0. Therefore, so I am not writing here x plus 2 equals to 0. So x equals to minus 2. And here is 2x minus 3 equals to 0. So 2x equals to 3. So x equals to 3 by 2. Okay. With the help of middle term factorization, I can tell, that is, here I am writing here. So x equals to minus 2 and 3 by 2. Okay. Now I'll take the help of Sridhar-Acharya's rule. Okay. Answer will be the same. Let's check the answer. That is ax square plus bx plus c equals to 0. Okay. That is the equation. So a is here 2, b is here 1 and c is here minus 6. So discriminant. b equals to b square minus 4ac, b square minus 4ac. So b square is 1 square minus 4 multiplied by a, that is 2 multiplied by minus 6 here. So 1 square is 1 here, minus minus, that is plus 4 2s are 8, 8 6 are 8, 8 6 are 48. So 48 equals to 49. Understood? So x1 equals to
x1 equals to minus b plus root over d divided by 2a. Okay, so minus b. So b is here 1, so minus 1 plus root over d means root over 49 by 2a. 2 multiplied by 2 here. So minus 1 plus root over 49 is 7. So 7 by 4. So plus 7 minus 1. So 6 here. So 6 by 4. That is 3 by 2. Here is 3 by 2. Understood? Next one. So x2 equals to. So I am not writing here minus b minus root over d. Okay. Writing here minus root over d by 2a equals to minus 1 minus root over 49 by 2 multiplied by 2. That is minus 1 minus 7 by 4. So minus 1 minus 7 is minus 8 divided by 4. So minus 8 divided by 4 cut here. So minus 2. That is minus 2. Understood the sum? So answer is the same. By middle term factorization or Sridhar-Acharya's rule. Okay. So I'll go to the next sum. Question number 3. Please like my video and share to your friends. अच्छा लगे तो and subscribe my channel and please comment me through your comment box. Okay. देखिए कंसेप्ट अगर अच्छा है ना तो कोई भी सम आप लोग कर सकते हैं. इसलिए कंसेप्ट हमेशा क्लियर करना चाहिए. कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. ओके. नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज 3x प्लस 4 इक्वल्स टू x. कैसे हो सकते हैं? ये तो रूट है, उधर पे तो नहीं रूट नहीं है. तो चलिए हम लोग क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए. ओके. सो बाय बोथ साइड्स स्क्वायरिंग वी गेट. ओके. सो अगर इस साइड स्क्वायरिंग करें तो क्या होता है ना, 3x प्लस 4. व्हाई? बिकॉज ये रूट मतलब पावर इज हाफ. रूट मतलब पावर इज हाफ. सो स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर. सो कट जाता है. इसलिए रूट ये होता है पावर इज 1. 1 के लिए कुछ नहीं लिखा जाता है. इसलिए किसी भी रूट होने से उसका स्क्वायरिंग करने से वो सिंपल नंबर बन सकता है. ठीक है, सिंपल नंबर हो जाता है. इसलिए कोई स्क्वायर भी नहीं है, कोई रूट भी नहीं है. ओके. एंड बट दिस वन इज एक्स स्क्वायर हियर बिकॉज इट वाज x to the power 1. 1 multiplied by square is 2. That is x square. अंडरस्टूड. ओके. अगर कोई भी रूट हो उसका स्क्वायर रूट है तो सिंपल नंबर हो जाएगा. लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को तो पहले लेना चाहिए. तो क्या करना चाहिए, इसको इधर लेके चले आइए. तो सो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस था, ये माइनस हो गया. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. लेकिन हमें तो साइन इंटरचेंज करना है. पहले तो एक्स स्क्वायर रखना चाहिए. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, साइन इंटरचेंज करते हैं. तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस हो गया. ये प्लस था तो माइनस हो गया. ये भी प्लस था, ये तो माइनस हो गया. सो 0 इज हियर नाउ. सो a x स्क्वायर. सो a इज हियर 1. कुछ नहीं है मतलब 1 है. b इज हियर -3. c इज हियर -4. सो d मतलब d इक्वल्स टू b स्क्वायर. b स्क्वायर मींस -3 square. I'm not writing the formula again. Okay. So -3 square minus 4ac. 4 multiplied by 1 multiplied by -4. Understood? So -3 square is also 9 and +3 square is also 9. Okay. So अगर इवन पावर है ना, तो पावर इवन होने से सोचिए -3 to the power 4 भी होता है. इवन पावर होने से हमेशा ये प्लस होता है. अगर ऑड है तो ये माइनस हो जाता है. क्यों ऑड होने से माइनस होता है? -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3. ओके. सो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. अगर ये इवन होता तो ऑड एक -3. सो माइनस से माइनस प्लस माइनस सॉरी
प्लस प्लस माइनस 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 अगेन माइनस 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 प्लस हियर. सो इवन होने से हमेशा आंसर प्लस में आते हैं और ऑड होने से हमेशा आंसर माइनस होते हैं. अंडरस्टूड? ओके. सो minus square is 9 here. Now 4 was the 4 was the 16. Minus minus plus. So 16 here, that is 25. Okay. So 25 here. Now x equals to. So x1 equals to minus b. So b is here minus 3. Minus minus b matlab minus minus 3. That is 3 plus root over d matlab root over 25 by 2a, 2 multiplied by 1, here is 1 here, so 2 multiplied by 1, so 3 root over 25 means 5 hai, so 3 plus 5 by 2, that is 8 divided by 2, that is 4 here. Okay, and now here is x2, that is x2 equals to 3 minus 5. ओके, सो 3 minus 5 डिवाइडेड बाई 2. मैं और इतना इलेबोरेटली नहीं लिख रही हूँ, ये हमें लिखे हैं तो इसलिए आप लोग को पता चल गया कि ये प्लस रूट ओवर 25 लिखना है तो इसको माइनस रूट ओवर 25 लिखना है, तो माइनस ये प्लस 5 निकला है तो आप लोग को माइनस 5 होगा. 2 multiplied 1 is 2, here is 2. Okay, so 3 minus 5 is 5 minus 3 is 2. Larger number is minus, so minus divided by 2, that is minus 1. So x का वैल्यू होता है मतलब 2 distinct real roots, one is 4 and another one is minus 1. Understood the sum? Okay. तो चलते हैं आप लोग नेक्स्ट सम में, that is question number 4. Class boring? Yes, coding. Not at all boring. Yes, coding chapter है. क्योंकि थोड़ा आप लोग साइन ठीक ठाक लिख सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, पूरा नंबर आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना. ये ठीक ठाक, ये बंगाली वर्ड है. आप लोग को बंगाली में पढ़ाऊंगी क्या? तो चलिए नंबर 4 हियर, दैट इज 2x square plus 2x square plus root over 5x. 2x square plus root over 5x. 2x square plus root over 5x minus 5 equals to 0. Okay. तो सोचिए मैम ये तो रूट ओवर 5 आ गया, सो कोई बात नहीं, हम लोग रूट से करते हैं. तो चलिए, सो ax square plus bx plus c equals to 0. Okay, so a is here 2, b is here root 5, c is here minus 5. Understood? So d is equals to b square, that is root 5 square minus 4 multiplied by a multiplied by c here. Understood? So root 5 square, that is root 5 multiplied by root 5. Root 5 multiplied by root 5 equals to 5. Root 2 multiplied by root 2 equals to 2. Root 3 multiplied by root 3 equals to 3. Why? हमेशा ये रूट का मल्टीप्लिकेशन करने से ये ऐसे क्यों नंबर निकलता है? देखिए, इंडिसेस पढ़े हैं ना आप लोग. मैं तो इंडिसेस का क्लास ली थी कई 2-3 महीना पहले, तो आप लोग का अगर चाहिए देखना तो प्लीज वो वीडियो देख सकते हैं. रूट मतलब बाय पावर हाफ, मल्टीप्लाइड बाय 5 का रूट मतलब पावर इज हाफ. मैं क्या सिखाई थी? ये है बेस, ये होता है इंडिसेस. तो इंडिसेस और पावर, सो बेस इज सेम, तो मल्टीप्लिकेशन होने से क्या करना चाहिए, हम लोग को पावर प्लस करना चाहिए, है ना. सो 5 टू द पावर हाफ प्लस हाफ, दैट इज 2 by 2, that is कट करके क्या होता है ना 1, that is 5 to the power 1 equals to 5. Same thing with 2 also, same thing with 3 also, same thing with 17 also, same thing with 100 also. Okay, so अगर कोई रूट का दोनों मल्टीप्लिकेशन करे तो उसका होल नंबर निकालते हैं. ओके,
तो चलिए ये भी सिखा दी है, ये क्लास हो चुका है, तभी भी मैं आप लोगों को रिकैप दे रही हूँ. ओके, so root 5 square is 5. Now 4 2s are 8, 8 5s are 40. 40 minus minus plus, so plus 40 here, so equals to 45. Now x1 equals to plus minus b, so plus minus minus b is minus root 5 plus b square minus b plus root over d by 2a, and minus b minus root over d by 2a. Okay, so x1 is minus b plus root over d by 2a. Root over d matlab root over 45 here. Understood? By 2a, that is 2 multiplied by 2. So minus root 5 plus root 45 means 3 3s are 9, 9 5s are 45. So 3 का पेयर है लेकिन ये अनपेयर्ड है, so मतलब root over 45 means that is 3 root 5. Okay, so 3 root 5 by 4 here. So now root 5 means 1 root 5 and here is 3 root 5. So 3 minus 1 is 2. So ये क्या होता है 2 root 5. क्यों 3 root 5 minus 1 root 5. So 2 root 5 by 4. That is 2 से कट कीजिए, 2 1s are 2 2s are. That is root 5 by 2. ये हो गया. अब इसको क्या करते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं. तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. x2 ये तो माइनस आएगा, सो x2 अच्छा चलिए मैं लिख ही देती हूँ माइनस रूट 5. ओके, प्लस है तो ये हमें माइनस लिखना है, रूट 45 लिखना है. सो क्या लिखना है अभी, ओ सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो माइनस रूट 5 माइनस 3 रूट 5 बाई 4. सो हियर माइनस 1 माइनस 3 minus 1 minus 3 that is minus 4. So क्या लिखना चाहिए minus 4 root 5 divided by 4. So कटिए 4 that is minus root 5. So two distinct real roots. One is root over 5 by 2 and one is minus root 5. Understood the sum? तो चलते हैं next sum. Question number 5 here. बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा है हमारा बंगाली कम्युनिटी में. सरस्वती पूजा ऑलवेज क्या होता है एजुकेशन का गॉडेस है, मतलब आप लोग के लिए आप लोग सरस्वती का देवी सरस्वती का पूजा करते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है. इस दिन बच्चे लोग काइट भी फ्लाई करते हैं इधर. ओके, फ्लाइंग काइट्स आप लोग को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 here. Root over 3x square plus 10x minus 8 root 3 equals to 0. Okay, so a कितना होता है, a equals to root over 3. b कितना है, b equals to 10. c कितना होता है, कैसा 0 लिखा है मैंने. ओके, c equals to minus 8 root 3. तो चलिए क्या करते हैं d सब करते हैं. पहले क्या लेना चाहिए d. d equals to b square. b square is 10 square minus 4 is c. 4 multiplied by a is root 3. Root 3 multiplied by minus 8 root 3. Okay, so 10 square is 100 minus that is plus. So now 4 8s are 32 multiplied by root 3 is 3. Okay, so 4 multiplied by 8 32 multiplied by 3
is 96 here. 96. That is 196. Understood? Now x1. So x1 equals to, I'm not writing the formula here. That is minus b. Minus b is minus 10. Minus 10 plus root over d. Root over d is root over 196 here. So now 2a, 2 multiplied by root 3. Okay. So minus 10 and root over 196 is 14. 14 square is 196. Okay. So 14 by 2 root 3. So plus 14 minus 10. क्या होता है? Plus minus minus होता है. So 14 minus 10 is 4 here. And here is larger number is 14 and that is plus. So answer is a plus. 4 by 2 root 3. Okay. So cut here 2. So 2 by root 3. लेकिन 2 by root 3 हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि ये नीचे जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, उसमें हम लोग इरेशनल नंबर नहीं रख सकते हैं. तो हम लोग को क्या करना चाहिए? रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए. सो क्या होता है? 2 by root 3 multiplied by root 3. so अगर मतलब डिनोमिनेटर में रूट 3 मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, दैट इज 2 root 3 divided by 3. दिस इज द आंसर. ओके. नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग इरेशनल नंबर नहीं रख सकते, इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए सेम नंबर से. ओके. ये रैशनल नंबर का चैप्टर में हो चुका है. ओके. नाउ x2. x2 equals to, then I am not writing here x2 minus 10 minus 14. Okay. So I am writing here minus 10 minus 14 divided by 2 root 3. So minus आप लोगों को क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए. So that is 14 plus 10, 24 here. 24 minus minus minus. So 2 root 3. Okay. 2 से कटिए 12 होता है. So minus 12 by root 3. So I have to multiply by root 3. Root 3 multiplied by root 3. ऊपर में क्या होता है? minus 12. So root 3 multiplied by root 3, that is 3. ऊपर में क्या होता है? 12. So कट दीजिए इधर. So क्या होता है? 4 equals to minus 4. Understood the sum? So one root is root 2 root 3 by 3 and another root is 4. Okay. So not 4, minus 4. Yes, minus 4. Understood the sum? Okay. I'll put the sixth sum. प्लीज कमेंट कीजिए आप लोग को क्या सम आप लोग को चाहिए सीखना, वो तो मुझे पता नहीं है. ये वर्चुअल क्लास है. मैं जो स्टूडेंट पढ़ाती हूँ वो लोग तो हमेशा कहते हैं मैम ये सिखा दीजिए, मैम वो सिखा दीजिए, वो तो कहते हैं. लेकिन आप लोग तो वर्चुअल क्लास में है तो आप लोग को तो कमेंट करके बताना चाहिए प्लीज मुझे ये सिखाइए, तब तो मैं आप लोग को सिखा सकती हूँ. कमेंट ना करते तो मैं कैसे सिखा सकती हूँ? ओके. प्लीज कमेंट मी थ्रू योर कमेंट बॉक्स. चलिए हम लोग क्या सीखते हैं? सिक्स्थ सम. डिफरेंट सम है. a x square plus 1 equals to a square plus 1x. Okay. A not equals to 0. So numbers sixth sum. A x square plus a x square plus 1 and here is a x square plus 1 a square plus 1x and a not equals to 0. तो ये कैसे सम है? कैसे हम लोग ये इसको सजा सकते हैं कि a x square plus b x plus c. तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन करके ये ब्रैकेट को हटा देते हैं. तो चलिए क्या होता है? a x square होता है प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज a इज इक्वल्स टू क्या होता है? a x square a square x प्लस x हो गया. तो इसको इधर लेके आते हैं. a x square
प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखिए ये ए एक्स स्क्वायर आ गया, अब तो बी एक्स चाहिए, तो एक काम करते हैं पहले, ए एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स है ना इसको बीच में लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, इसको पीछे लेते हैं, प्लस ए, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म में आएगा, सी में आएगा। तो चलिए ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, इसको कॉमन लीजिए, इसको कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन लीजिए जैसा था इधर, तो क्या होता है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है, ठीक है। इसको माइनस कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया, सो एक्स कॉमन लिया तो ए स्क्वायर रह गया है, ये एक्स मतलब 1x है, तो एक्स ले लिया मतलब इधर में 1 चला है, अंडरस्टूड। नाउ ए इज सी हियर, सो आपको क्या समझना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सो ए इक्वल्स टू, अच्छा चलिए ए इक्वल्स टू ए तो नहीं लिख सकते, तो इसको चलिए हम लोग कैपिटल लेटर ए लेते हैं, ए, ठीक है। अच्छा आप बी कैसे लेते हैं, बी इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 एंड सी इक्वल्स टू ए हियर। देखिए ए क्यों ये कैपिटल लेटर लिया है, ये तो ए लेना चाहिए, तो ये तो है ही तो स्मॉल लेटर ई, तो हम लोग स्मॉल लेटर ए इक्वल स्मॉल लेटर ए तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कैपिटल लेटर ए। तो अगर ये कैपिटल लेटर ए लेते हैं तो बी भी कैपिटल लेटर ले लेते हैं, तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इधर एक्स का पहले कोएफिशिएंट यही है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 एंड सी इज हियर ए, अंडरस्टूड। नाउ डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर मींस माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये क्यों दिया है सेकंड ब्रैकेट, क्योंकि पहले माइनस है, उसको प्लस करना है, ओके। माइनस 4 multiplied by a multiplied by here a and here is also a, so multiplied by a, understood, a is here a and c is here also a, okay, so 4 multiplied by a multiplied by a, so चलिए b square that is minus, so plus में आएगा, so a square plus 1 whole square minus उठ गया, ठीक है, माइनस 4a square, तो क्या हुआ, दैट इज इसका स्क्वायर होता है, तो चलिए ऐसे ही रखते हैं, सो डी छोड़िए, डी ऐसे ही रखते हैं, अच्छा, क्योंकि ये बाद में ये स्क्वायर हट जाएगा, तो चलिए आप क्या करते हैं, एक्स निकालना है ना, तो चलिए ये थोड़ा डिफरेंट सा है, अब x निकालना है इसका, सो x इक्वल्स टू माइनस बी, सो माइनस बी इज दिस वन इज b हियर, सो माइनस बी इज माइनस माइनस, सो प्लस हो जाएगा, सो a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, सो माइनस माइनस बी, सो b इज हियर, नो स्क्वायर नहीं, ये लिखना चाहिए, तो स्क्वायर हो गया, सो माइनस बी that is x equals to b plus root over d here by 2a, 2 multiplied by a means a है इनका, a means a है, okay, 2a, so here is, so a square plus 1 is a square plus 1 plus root over d means a square plus 1 whole square, a square plus 1 whole square minus 4a square, understood, so here is, that is ये है a square, ये है b square, so b square is that is root 2a whole square, okay, so इधर ऐसा लिखिए, root over that is a square plus 1 a square a plus b whole square, a square plus 2 multiplied by a multiplied by b, okay, a is here a square मतलब 4 a to the power 4 here, a plus b whole square,
सो ए स्क्वायर मीन्स ए होता है इधर ए स्क्वायर, सो उसका 4 है. ओके, सो प्लस 2 multiplied by a square multiplied by 1. Okay, plus b square 1 plus minus minus that is that is 4a square. Okay, so इसको लेते हैं minus 4a square. Okay, so a square हटा दीजिए, so a to the power 4 plus 2a square multiplied by 1 plus 1, that is minus 4a square. 2, that is 2a. Okay, so now you can write here, that is a square plus 1 plus a to the power 4 plus 2a square minus 2a square. So minus 2a square plus 1. अब देखिए a क्या हो गया, अच्छी तरह से समझिए. a to the power 4 minus 2a square plus 1, that means a square minus 1 whole square. क्यों हो गया ऐसा, क्यों हो गया ऐसा? देखिए a to the power 4 मतलब a square square minus 2a square मतलब minus 2 multiplied by a square multiplied by 1 plus 1 means 1 square, that is a square minus 2ab plus b square, that is a square minus a square a minus b whole square. So here I can write here, understood? So here I can write a square plus 1 minus root over a minus b whole square by 2a. Understood? So a square plus 1, ये अगर स्क्वायर है तो ये रूट ओवर उठने से एक रह जाएगा. सो माइनस ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों है ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर उठाने से ही आता है. क्यों ब्रैकेट में रखे? क्योंकि ये माइनस का साइन इंटरचेंज होगा. ओके, बाय 2a इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 1, आप देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 1 बाय 2a. ओके, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1. तो देखिए ये ए स्क्वायर कट जाते हैं, माइनस 1 प्लस 1 कट जाता है, सो 0 बाय 2a, सो 0 बाय 2a इक्वल्स टू 0. अंडरस्टूड? थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था. अब क्या है, ये हो गया x1. जब अगर एक तो x1 क्या हुआ है, एक इधर लिखती हूँ, x1 क्या हो गया है 0. नाउ x2 का बारी है, तो ये इतना नहीं लिख रही हूँ, इधर चले जाती हूँ. सॉरी, अच्छा सॉरी, ये प्लस था ना, ये प्लस था, सो इसलिए प्लस होगा. सॉरी, ये उस टाइम में माइनस हो जाएगा. समझ में आया? इस टाइम ये तो प्लस था, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस लिख दी थी. जब ये माइनस का बारी होगा तब क्या होगा, ये इधर 0 आएगा. समझ में आया? क्योंकि ये मैं माइनस लिख चुकी हूँ. ठीक है, तो माइनस लाना ही है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम में आएगा तो ये 0 आएगा. अंडरस्टूड? नाउ इट इज प्लस हियर, सो प्लस, तो इसको प्लस करें, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं. साउंड इज द सेम बट सिंबल इज डिफरेंट. सो अब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये समझ गया है ना, जब माइनस होता है वो 0 आ जाएगा. ठीक है, तो पहले वाला अब क्या है प्लस. अब तो इसको ब्रैकेट को उठा दीजिए, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a, मतलब क्या कट जाते हैं, 1 1 कट जाते हैं. ठीक है, सो ये क्या होता है 2a स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर बाई 2a. इसका क्या है स्क्वायर, 2a स्क्वायर बाई 2a, 1 1 कट गया. सो देखिए 2 2 कट गया और एक वो a कट गया, मतलब इधर a होता है. समझ में आया? तो पहला वाला a होता है. तो इसका रूट दोनों रियल रूट क्या होता है, एक होता है a, एक होता है 0. मैं 0 पहले निकाल चुकी थी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अंडरस्टूड द सम? ओके, आई विल गो टू द सेवेंथ सम. Very important chapter this is. आप लोग तो मुझे बहुत ही कोऑपरेट कर रहे हैं.
आप लोग मुझे मेरा ये वीडियो पूरा पेशेंस लेके देख रहे हैं, इसलिए तो मुझे व्यू इंक्रीज हो रहा है। सो प्लीज मेरा साथ रहिए, मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए, मुझे कोऑपरेट कीजिए, सो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से टीचिंग कर सकती हूँ। कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मुझे लिखिएगा कि मैम आपका ये गलत हुआ है, तो मैं जरूर वो रेक्टिफाई कर दूंगी। होता है जब मैं सामने भी बैठ के बच्चे लोगों को पढ़ाती हूँ तभी भी तो कोई कुछ ना कुछ गलत होता है, वो लोग कहते हैं मैम आपका एक कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया। सो आप लोग भी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए से मुझे बताइए कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, वो मैं ठीक से कर दूंगी। ओके, नंबर 7 सम। नाउ 1 by x plus 1 by x plus 2 equals to 3. x not equals to 0 और 2. x 0 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा. So 1 by x plus 1 by x plus 2 equals to 3. So इसको भी आप लोगों को क्या करना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में लेना चाहिए. So पहले क्या करना चाहिए, तब सिंपल सा एलसीएम करें. So x और x प्लस 2 का एलसीएम कितना होता है, x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2. अंडरस्टूड. सो इसको x रख दीजिए तो x प्लस 2, x प्लस 2 इसको x से डिवाइड करें, क्या होता है, x प्लस 2 होता है. तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, ये तो रूल है ना. सो ऊपर में क्या होता है, x प्लस 2. अब इसको सोचिए, सो x प्लस 2 को x प्लस 2 से डिवाइड करें तो ये चला जाता है, रह जाता है x. तो x इंटू 1, सो x. अंडरस्टूड, इक्वल्स टू 3 हियर. सो x प्लस x 2x, 2x प्लस 2. अब क्या होता है, इसको इधर लेके चले जाइए, x मल्टीप्लाइड बाई x, x स्क्वायर. ओके, सो 3. ये पहले मल्टीप्लाई कीजिए, सो x स्क्वायर, इसके साथ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही है, तो 3 को पहले रखिए, x मल्टीप्लाइड बाई x इज x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x इज 2x. अंडरस्टूड. सो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू, आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर प्लस 6x. ठीक है. तो आप क्या लिखना चाहिए, 3x स्क्वायर को पहले लिखिए, पूरा सेट को इधर लेके चले आइए. सो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये तो इधर ही था, उसको प्लस लिखना चाहिए, प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस करना है. सो माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4, माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. आप साइन इंटरचेंज कर दीजिए, पहले माइनस नहीं रखना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सो 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो माइनस हो गया प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस है. ओके, इक्वल टू 0. नाउ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0. सो a equals to 3 here, b equals to 2 here, c equals to minus 2 here. Now you can find out d. ओके, सो चलिए ये छोड़ देते हैं. आप लोग को we have to find out d. इरेज करते करते मैं लास्ट लाइन ना इरेज कर दूं, है ना, तो हो गया गलत. सो a इक्वल्स टू 3, सो d निकालना चाहिए, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a is 3, c is minus 2. So 2 2s are 4, minus minus plus, 4 3s are 12, 12 2s are 24. Okay, so 28 here. Now x1, x1 equals to minus b मतलब minus 2 प्लस, ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा, बस रूट ओवर d, रूट ओवर 28 डिवाइडेड बाई 2a. a कितना होता है 3, 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. तो इधर क्या लिखना चाहिए, x2 मतलब माइनस 2 माइनस रूट ओवर 28
by 2 multiplied by 3. Understood? So minus 2 plus 28 मतलब 2 multiplied by 2 multiplied by 7, that is 28. So 2 का पेयर है तो 2 को बाहर निकालिए, 7 को अंदर रख दीजिए. ठीक है? Stay at home, stay safe, stay home. Okay. So ये अनसेफ है, ये सेफ है. तो चलिए इसको 6 ले लेते हैं. अब क्या है तो इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस 2 माइनस 2 रूट 7 बाय 6 लेते हैं. तो चलिए अब देखिए 2 कॉमन है इधर. सो अब 2 ले लिया है इधर, तो क्या करना चाहिए, माइनस 1 प्लस ये माइनस 2 था इसलिए ये माइनस 1 हो गया, प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय 6 हियर. सो इससे कट जाते हैं 3. ओके, नाउ इधर क्या होता है, इधर माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में माइनस है. सो माइनस 2 कॉमन लेने से 1 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय 6 हियर. सो इसको कट दीजिए तो क्या हो जाता है, अब इसको छोड़िए, इसका भी नहीं चाहिए. और सो क्या होता है, माइनस 1 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 हो गया. और ये क्या हो गया, इससे कटिए तो 3 होता है तो माइनस रह गया. सो माइनस 1 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाय 3. अंडरस्टूड द सम. जैसे भी हो आप लोग को डी निकालना चाहिए, उसका जरिए से हम लोग x1 x2 दैट इज 2 रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सम में चले जाते हैं. मैम कितना सम और सिखाएंगे, और एक दो सिखाऊंगी, तब आप लोग को पूरा सीधा रचड़िया एकदम आंख बंद करके सुंदर से आप लोग, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, आप लोग स्कोर्स कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. सब डिफरेंट सम सिखा रही हूँ. और x 0 ही नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ. x का ये बोल दिया था ना, इधर लिख दिया था कि x को 0 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 2. ओके, सो x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 2. अंडरस्टूड. अभी तो आप लोगों का ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गया है. कितना दिन बाद आप लोग स्कूल गए हैं, अच्छा लगा, जरूर अच्छा लगा. लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आप लोग कैसे जाते हैं, किन किन लोगों के घर में कोरोना हुआ है ये आप लोग को पता नहीं है, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा संभाल के चलना चाहिए. प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस and use mask always. So number 8, that is, now here is 2x minus 1 by x equals to 7. Okay, इसका क्या बोला है, आंसर will be correct to 2 decimal places. मतलब आपको बताया दिया है कि ये डेसिमल में आएगा. Answer will be 2 decimal places. Solve the following equation, 2x minus 1 by x equals to 7, and जो आंसर जो है होता है वो क्या आएगा ना, करेक्ट टू 2 decimal places. Okay, so 2 decimal places. Understand the sum? Okay, so first solve it. x square तो है नहीं उधर, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर लेना है, तब आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आप लोग सजा सकते हैं. ओके, तो चलिए पहले क्या करते हैं, सोचिए इसका एलसीएम होता है एक्स, क्योंकि 2x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसका नीचे तो x है, ये हम लोग को डिनोमिनेटर है, तो 1 और x का एलसीएम क्या होता है, x ही होता है. तो चलिए x को 1 से डिवाइड कर देता है तो कितना होता है x, आप x को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होता है 2x स्क्वायर. ओके, सो हियर इज 2x स्क्वायर माइनस x को x से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 हियर इक्वल्स टू 7 हियर. देन सो 2x स्क्वायर माइनस 1 ये चला जाता है उधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 7x. देखिए आ गया x स्क्वायर, आ गया x. तो चलिए इसको इधर लेके चले आते हैं, तो क्या करना चाहिए, 2x स्क्वायर
इसको बिंदु में लेना चाहिए क्योंकि बी एक्स सजेगा और ये कंस्टेंट लास्ट में जाएगा सी। ओके, सो इसको लेके चला जाता है, प्लस 7x है तो माइनस 7x, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड द सम? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में आ ही गया। सो अब एक क्या है, तो इधर मैं लिखती हूँ a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 7, c इक्वल्स टू माइनस 1, क्योंकि ये में जगह थोड़ा कमती हो जाता है इसलिए मैं उधर लिख रही हूँ। ओके, सो चलिए अब d निकालते हैं। अच्छा, d कितना होता है, दैट इज d इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 multiplied by 2 multiplied by minus 1 here. Okay, so कितना होते हैं, that is minus 7 square is 49, minus minus plus 4 4 to the 8, 8 multiplied by 1 is 8, so 49 plus 8 that is 49 plus 8 कितना होता है 57. Okay, then now x here, so x1 equals to minus b is minus 7, minus 7 is plus 7, plus 7 plus root over 57. Okay, root over 57 by 2a, 2a means 2 into 2, 2 multiplied by 2. Okay, now x2 equals to same thing with it, simple minus, so 7 minus root over 57 by 2 multiplied by 2. ठीक है, अच्छा, देन क्या होता है, रूट ओवर 57 कितना होता है, रूट ओवर 57 होता है दैट इज 7 7s are 49 and 8 8s are 64. Okay, so 57 in between 7 square and 8 square. Okay, 7 7s are 49 and 8 8s are 64. तो चलते हैं हम लोग देखते हैं रूट ओवर 57 कितना होते हैं, तो उसको पहले निकाल लेते हैं रूट ओवर 57, इसको तो जरूरत नहीं है, तो चलिए रूट ओवर 57 इधर निकाल up to 2 decimal places, so root over 57, 7 7s 49. Okay, so कितना होता है 8, 7 का डबल 14, सो ये पॉइंट देके इधर दोनों जीरो लेके चले जाते हैं, तो सोचिए कैसा होता है, 5 ले लेते हैं, 5 5 5 तो 25, 2 in hand, 5 7 5 14 तो 70, 72. Okay, 725, that is again 75. So 2 zeros are here for the point, that is now 5 double of 5 is 10, so 10 is 0, 1 carry, that is 5, here is 1, so it is 150. 5 का डबल क्या होता है 10 होता है, तो 10 का 1 0 0 लिख के 1 कैरी हो जाता है, तो 14 के साथ 1 कैरी होने से 15 होता है। तो चलिए आप क्या लेते हैं 4, that is 4 4s are 16, 6 1 carry, so 1 is here, 15 4s are 16. अच्छा, अगर 5 ले लेते हैं तो 5 5s are 25, 15 5s are 17. अच्छा ठीक है, चलिए 16. अच्छा, अगर 5 भी लेते हैं तो क्या है एकदम नजदीक आ जाता है इसका, देखिए अगर 5 ले लेते हैं तो इसको 5 5s are 25. ओके, so 5 5s are 25, 5 2 carry 5 0 0, so 2 5 15s are 75. ये 7500 and 7525 एकदम approximation 7.55 here. Okay, up to 2 decimal places. So root over 57 approximately 7.55. So 7 plus 7.55 here, and here is 4. Understood? So here is 7 minus 7.55, here is 4. So 7 plus 7.55, that is 14.55. So 14.55 divided by 4. So 2 से कट दीजिए, okay, ऐसे ही रखते हैं 14.55, and here is 7, that is
0.55 डिवाइडेड बाई 4। इसको डिवाइड कीजिए 4 से, वो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो रूल इज दिस, एंड प्लीज डिवाइड 14.55 डिवाइडेड बाई 4। कितना होता है? 4 3 12, 2 ये पॉइंट आएगा, 2 5 25, 4 8 24, 4 8 24 here, 24, so 1 1 5 15, 4 3 12, 4 3 12, so 3 3 0, 4 7 28, 2 0 4 5, that is here 3.8375, 3.8375. So that is a 3.8375, that is you can take it 375, so 3.83. Okay, so here is, that is 3.83. okay, and it is 0.55 divided by 4. So 0.55 divided by 4, that is 50, that is 0.55. So 0.55 divided by 4, that is 0.5, that is 4 1s are 4, 1 5, 4 3s are 12, 12. So 30, 30 is 7, that is 5. So 0.1375, so 0.1. Okay, so 0.114, so 0.14. So x का वैल्यू क्या होता है? So 2 real roots, that is 3.83 and 0.14. Understood the sum? So चलिए, आज के लिए काफी है, बहुत सीख दिया हो, मतलब सीख चुके हैं आप लोग. So please like my video, share to your friends, subscribe my channel and please comment me through your comment box. So आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ आप लोगों को सिखा सकती हूँ. तो चलिए आज के लिए बाय, जॉइन द नेक्स्ट क्लास.